Sir, I also have one more point. Recently, sir, if you know this thing or not, a software engineer AI, also called as the Devin AI, was launched recently, and it is basically a software engineer. It is fully autonomous, and sir, it has already taken over lakhs of job for coders only. But Uh, the thing is, which software you're talking about? डेविन एआई, बट सर उसके पीछे भी वही रहता है कि एक ह्यूमन मास्टरमाइंड तो रहेगा ही। तो वही सर पॉइंट है कि अगर जैसे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था पहले, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में भी लेबर्स की जॉब कम हुई थी, बट जिन लोगों ने स्किल अडेप्ट कर ली थी वो लोग हायर पेइंग जॉब पे चले गए थे। तो सेम चीज अभी भी अप्लाई होगी कि अगर करेक्ट। अपनी स्किल सेट अपन एआई को यूज करना सीख जाएंगे तो जॉब सिक्योरिटी ऑब्वियसली रहेगी। तो गाइस आज के सेशन से बहुत कुछ सीखने मिलता है। So can I speak? यस Uh, सुमित्रा। I think I think AI will not replace all the SAS programmers, but it can replace some of them who cannot acquire all means all the qualities, who don't have all the qualities to remain in this field. यस सर, वेरी आई करेक्ट। एग्री विद दिस सर। सर डेटा साइंस और डेटा एनालिस्ट की जॉब इतने रिस्क पे नहीं है जितनी डेवलपमेंट और बाकी कोडिंग जॉब्स है। एज आई थिंक सो, मतलब ज्यादा नहीं पता मुझे। ओके। But in clinical, I think it is means AI को ये AI एक कर नहीं पाएगा SAS प्रोग्रामर को रिप्लेस, बिकॉज इन क्लिनिकल फील्ड changes frequently. So दिस इज ऑल्सो करेक्ट पॉइंट। क्लिनिकल में चेंजेस उतने फ्रिक्वेंट नहीं होते और टेक्नोलॉजी को उतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिया जाता, और कंपनीज यूज कर भी रही है टेक्नोलॉजी तो इन हाउस कर रही हैं, दैट दे आर नॉट यूजिंग फ्रॉम द मार्केट। ओके, Even the clinical trials and all require human touch, right? दैट्स ऑल्सो अ करेक्ट पॉइंट। यस संजय। I think sir SAS software are also replaced by the AI. Like Mhm. sir, new language is Julia language sir. So they combine Mhm. sir like Python और दोनों Mhm. create a new language, Python और R language. वो सर Mhm. लगता है आगे फ्यूचर आफ्टर वो रिप्लेस कर सकता है Mhm. SAS को। Okay, that can be also correct. Okay, now let's talk about the current situation or current scenario. What is happening? So the very first question, can AI replace SAS programmers? No, never. Why? Because here in this role, you need to take some decisions, and those decisions, discussions, we need to have some discussions with team, FDA, client. Those discussions cannot be done by softwares. At the end, you can do programming. Not you can. At the end, software can do programming, not discussions. It cannot come to conclusion. That is one thing. What needs to be done to be at the best or top 30% on this role to ensure you are at the top? See, to ensure you need to adapt the changes in every 5 years. Whatever changes is happening, what you need to adapt. It means, let's suppose they are adapting some new softwares, okay, and even the company will also tell you, so you can also learn that nothing is going to replace you. AI is not going to take over this job, especially sooner or later. The part is how it is possible that this job is totally secure from AI or any other job, a good job which is secure from AI. There is one thing, that automation, you guys are thinking automation will happen or not. Automation is already going on clinical SaaS role, let me tell you. Already इसमें चल रहा है automation. But you know that automation is not like replacing you. That automation is happening to make your work better, easier. So you can focus on more logical things. Just now someone told that few easier tasks can be replaced, so we can focus on the crucial task. As in clinical SaaS programmer or statistical programmer, you have multiple tasks. So the easier task or the easier coding can be replaced. Even in the coming session, we will learn how to automate our own codes in SAS itself. In advance, we are going to learn some topic, macro, do loop, array. These are some topics along with conditional statement. I'll show you how we can automate our own work. So now that is going to benefit us. So जिसको वो automation थोड़ा बहुत आता है, for him, he can do more optimized coding, and that is a benefit for you. So only two things are there, like instead of technology
having the fear of technology, just master the technology, learn it. Now you can have a question, sir, that कि ऐसे तो क्या हमें हमेशा ही हर टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से अपग्रेड हो रही है every second or third year, like we are getting to hear some technology, some automation, some chat GTP, some AI. In this way, like every year we have to learn something. को ये समझना है आपके काम की क्या चीज है. You don't need to learn everything which is coming in the market. What you are into, what is required on your role, what can make your work better. You all have enough mind to judge this. Especially after getting the job, you'll get to know what you're doing and what needs to be done to get better. So you need to focus on those things only. And the span should be 5 years. In 5 years, you should upgrade something in you that will keep you at the top 30%. Still, people are there working in SaaS from last 20, 30 years. Yeah, but if you upgrade every 5 years, okay, that will make you better. And guys, you need to think in different way. Why we have this concept of replacing AI will replace. One thing told by Atharva in the beginning, that as an human, we love to upgrade clothes. We love to bought new clothes, right? We love to change our phones. We love to have better equipments, new home, new car. हमें सारी new चीजें पसंद है. Like let's suppose if you have money, you'll bought a new home, you'll bought a new car, you'll bought a best phone, you'll bought a best things in the world which is available. So this is as an consumer. As an consumer, आपको न्यू चीजें, अच्छी चीजें पसंद है. बट एज एन क्रिएटर, क्योंकि जब आप किसी रोल पे काम करते हो, जब आप कुछ क्रिएट कर रहे होते हो, तो यू आर अ क्रिएटर. सो व्हाई डोंट यू थिंक कि मैं जो कुछ क्रिएट कर रहा हूँ उसमें कुछ मैं नया करूँ, उसमें कुछ मैं बेटर करूँ. यू कैन थिंक इन दैट वे एज वेल, राइट? नया करूँ मीन्स नॉट एवरी कोड यू शुड राइट इन न्यू थिंग. एटलीस्ट यू शुड अपग्रेड योर स्किल. जब आपको न्यू चीजें पसंद आती है, यू नेवर थॉट अबाउट योर माइंड, आप उसको सालों तक एक ही चीज क्यों रखना चाहते हो? द क्वेश्चन इज दैट. द पीपल हु शुड हैव द फियर रिप्लेसेबल, it's been 10, 20, 30 or 40 years, they haven't upgraded anything. And even like guys, one thing, 10-15 साल में आप मैनेजर बन जाते हो इजीली SaaS में. फिर आप खुद कोडिंग नहीं करते, रिमेंबर दिस. तो ऐसा भी नहीं कि पूरी लाइफ आपको कोडिंग करना पड़ेगा. देयर आर मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटीज. इट्स नॉट, अगर फ्रेशर से लेके मैनेजर से लेके वाइस प्रेसिडेंट सभी कोडिंग करेंगे तो प्रोजेक्ट कौन संभालेगा, टीम कौन संभालेगा, प्रमोशंस कौन संभालेगा, हायरिंग कौन संभालेगा, क्लाइंट डिस्कशन कौन करेगा, बजटिंग कौन करेगा? फ्रेशर से लेके वाइस प्रेसिडेंट तक, डायरेक्टर तक सभी एक ही काम नहीं करते. जो फ्रेशर से लेके सीनियर प्रिंसिपल तक होता है ना, उनका फोकस ज़्यादा प्रोग्रामिंग पे होता है. उसके बाद आपको टीम मैनेजमेंट, धीरे धीरे डिफरेंट टास्क, एंड दैट्स अप टू यू कि आप कितना अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हो. आप उसके बाद भी यू वांट टू अपग्रेड, सो इट विल बी बेस्ट फॉर यू. आप अपनी टीम को बेटर डिलीवर कर सकते हो. यू कैन बी अ गुड मैनेजर, गुड डायरेक्टर, गुड वाइस प्रेसिडेंट. बट एट दैट लेवल आपको प्रोग्रामिंग नहीं करनी होती. यू हैव अ टीम, होल टीम. ओके, बट अगेन एज अ गुड गेस्चर का एक दिमाग है, उसको आप रिस्पेक्ट दे सकते हो बाय फीडिंग न्यू थिंग्स. This is not only for you, this is for me as well, and this is a global law like gravity. It will be applicable to all. So you can feed new things to your mind in every 5 years and it will help you literally. आपका जो way of thinking है या जो चीज़ों को करने का तरीका, it will change if you adapt things in every 5 years. Adapt something new, some new skill. And okay, so guys, this is what I think. Again, things can be little up and down, but yeah, from last many years बहुत सारी चीजें आई, right? We have Google. So Google ने किसकी जॉब ले ली, right? How many of you have lost the job because of Google? Google have made your life easier, better. We have ChatGPT. How many programmers lost their job because of ChatGPT? None of them. How many people you have seen they have lost the job because of the technology? And of course, the people who have lost the job, so they are doing a job which should be done 30 years back. वो अभी भी वो काम कर रहे हैं जो 30 साल पहले करना चाहिए था. If in the current era, I'll give you a famous phone, that Nokia black and white, will it work for you? It was the best phone in that era. You cannot survive, right? The current era requires something more. You need to pay online, you need to attend sessions online, you need to call, you need to do multiple things.
call was possible on that phone as well. But apart from that, other things you cannot do, which is must in the current era. So in the same way, and there is a famous story. I don't know you guys know or not. So this Android was a company, the software which is available in most of the Android phones. So they went to Nokia because Nokia was the biggest company in that era at that time. That कि वो गए और उनको बोला कि हमने एक नया सॉफ्टवेयर क्रिएट किया है and you can use this software inside your phone. So Nokia बोले हमको इस सॉफ्टवेयर की कोई जरूरत नहीं है and हम already because they were the market leader, right? So that went to overconfidence and फिर this software they went to different Android, they went to different companies like Motorola and many other some other big players. They adapted. Being a biggest brand in that era, they went straight away out of the market. So market में से आप तुरंत बाहर नहीं जाते कभी भी. अगर आप मिस्टेक भी कर रहे हो तो भी आपको टाइम मिलता है. लाइफ इज वेरी ब्यूटीफुल. यू गेट इनफ टाइम टू इम्प्रूव योर मिस्टेक. नोकिया ने उसके बाद भी नहीं सुनी. उसके बाद भी उन्होंने जाके माइक्रोसॉफ्ट से वो करके उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट लाया. एंड्रॉयड काफी बेटर हो चुका था उस टाइम पे और माइक्रोसॉफ्ट कॉम्प्लेक्स था थोड़ा सा कंपेयर टू दैट. ना ही वो कोई ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए iOS जैसा कि आप फोर्स करो कस्टमर को या ऐसा कुछ क्रिएट करो अट्रैक्टिव वे में कि कस्टमर को ना समझ में आए तो भी वो परचेस करे. बीइंग अ पार्ट ऑफ लग्जरी, लाइक पीपल परचेस आईफोन, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल इनिशियली परचेस बिकॉज ऑफ फीलिंग दैट आईफोन ब्रांड. सो नोकिया वो भी नहीं कर पाया विंडोज को लेके. सो ना वो ब्रांड क्रिएट कर पाए ना यूजर एक्सपीरियंस विद द विंडोज. तो वो विंडोज भी काफी टाइम बाद लाए. एंड्रॉयड काफी बेटर हो चुका था. सो दैट they made a lot of mistake, they got a lot of chances and they almost went out of the market. So this is a lesson for everyone, right? And guys, forget about others lesson. I can give you my own lesson. I belong from mechanical, right? Most of you know. I'm able to teach you guys because I have taken some forward steps. I have upgraded my skills. So there can be multiple examples, guys. So it's always better for you only if you are upgrading your skills. And concept is every 5 years. That is what I feel. Like Nokia जैसे एक और एग्जांपल है in the field of photography. It's Canon. Canon ने भी जब what you can say कैमरा लाया था, that was like वो अपने टॉप पर था, but उन्होंने अडॉप्ट नहीं किया टाइम के साथ. Correct. Now they are replaced by the phones like smartphones. Correct. Same example is like Nokia. So guys, there are multiple examples. So that's why grade is important in life. It's good for your mind as well, and it's good for your career as well. For everything, I feel if you upgrade yourself, you feel free. I naturally feel this thing that अपग्रेड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. जो लोग अपग्रेड नहीं करते ना, की सोच, टू बी ट्रू गाइज, आई डोंट नो हाउ आई एम एक्यूरेट, बट उनकी सोच लिमिटेड रह जाती है. इट्स नॉट अबाउट द नॉलेज पार्ट. आपका सेंस ऑफ थिंकिंग ही लिमिटेड हो जाता है. आप बायस्ड हो जाते हो. आपने अगर कोई एक चीज देखी है तो आप वहीं तक सीमित रहोगे. और एक तो आपने अपग्रेड नहीं किया तो मे बी दैट विल अगेन यू डोंट हैव द अडेप्टेबिलिटी. दैट आपको अडेप्ट करने का मन ही नहीं करेगा, चाहे वो थॉट्स ही क्यों ना हो गए. आप अपने थॉट्स पे भी बायस हो जाओगे. आप जिसको अच्छा मानते होगे उसको अच्छा मानोगे, जिसको बुरा मानते होगे उसको बुरा मानोगे, क्योंकि आपने अपने माइंड के अंदर वो फीड किया ही नहीं है. अडेप्ट करने का कुछ कॉन्सेप्ट डाला ही नहीं है. तो बायस्ड कॉन्सेप्ट पे चला जाता है. तो यस सर, दिस इज सर मतलब एक करेक्ट ही है. और इसके इसमें एक और पॉइंट ऐड करना चाहूंगा जो बहुत बड़ा एग्जांपल हो गया अपने कंट्री में. जितने भी लोग हायर पोजीशंस पे हैं, मिनिस्ट्री जो लोग भी संभाल रहे हैं, उनका भी सर सेम ही सिनेरियो जो आपने एक्सप्लेन करा. जो लोग एक ही गद्दी पे बहुत साल से बैठे हुए हैं, जिन कारण डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जिन कारण करप्शन बढ़ रहा है. मतलब वन ऑफ द रीजन ये हो सकता है कि अगर आप स्किल सेट इंप्रूव नहीं कर रहे हो, अपग्रेड नहीं कर रहे हो, तो ऑब्वियसली सर करप्शन आएगा ही कहीं ना कहीं पर. This was about to tell, I was about to tell, but I was avoiding because ये अच्छा नहीं होता. You know, if someone is not upgrading their skills, at the end, I don't know how, but at the end they will do some corruption in long term, either directly, either indirectly. Why? Because
Why? Because the very first thing, let's suppose if you are giving some service, okay, to consumer, तो सबसे पहली चीज, क्योंकि आपके पास अप टू डेट चीज नहीं है तो आप कंज्यूमर से छुपाओगे वो चीज. लेट्स सपोज यू आर अ प्रोडक्ट कंपनी, यू विल हाइड. आप कंज्यूमर को उसकी अच्छाइयाँ बताने की जगह आप उसकी बुराइयां बताओगे. आपको उस बारे में पता नहीं है, शायद आप उसके डिस्कशन भी अवॉइड करोगे, गलत बोलोगे. दिस थिंग विल बी नॉट एप्लीकेबल टू ऑल, बट आई फील इन लॉन्ग टर्म अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, आई डोंट नो हाउ, बट inside and outside slowly you get corrupted. Sir, a small example of this can be lying on your resume. There are multiple examples, Tharva, and that is one of the correct, lying on your resume. What I have seen, there are some institute who are charging huge chunk of money for courses for those job already automations are happening. कुछ ऐसे मार्केट में जॉब रोल है क्लिनिकल में जो ऑलरेडी ऑटोमेशन उस पर चल रहा है. ऑटोमेशन मीन्स वो तो जॉब ही ऐसी है कि वो खत्म होने वाला है. बट दोज इंस्टीट्यूट आर प्रमोटिंग हैवीली, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट के पास वही लिमिटेड नॉलेज है, वो उनका एक प्रोडक्ट है, प्रमोट करना नहीं चाहते, उनके पास एक्सपर्टीज नहीं है दूसरी चीजों की, ना वो अपग्रेड कर रहे हैं. सो दे आर पुशिंग, जो है उनके पास वही पुश कर रहे हैं. तो आई फील दिस कॉन्सेप्ट स्लोली इट विल इम्पैक्ट, आई फील इन लॉन्ग टर्म, इवन from inside. Like I feel this concept कि अगर आप अपने आप को upgrade नहीं करते, you get biased in a lot of things. It's not about your career only. You get biased with people. You get biased in the talks, discussion, service, whatever service you are giving to anyone. And at the end ऐसा भी नहीं कि अगर आप upgrade नहीं कर रहे तो आपकी लाइफ चल जाए. आज के टाइम पे डिफिकल्ट है. 40 years back टाइम डिफरेंट था. आज के टाइम पे अपग्रेड नहीं कर रहे तो स्लोली अब मार्केट इज ओपन, राइट? मार्केट इज ओपन, पीपल गेट टू नो फ्रॉम ऑनलाइन एंड एवरीवेयर, सबको पता चल जाता है. सो स्लोली आप मार्केट से बाहर होते जाते हो. So that's why I feel. Sir, go ahead. I'm sorry. I'm done. Atharva, go Sir, ahead. I was having a question. Like, beside general things that we all know, can you give me some new or innovative examples or methods from which we can upgrade ourselves? Innovative methods so that you can upgrade yourself, is it? Sir, with the coming competition. What I feel, guys, that is I have tested on me, that इंसान कब major changes लाता है. You know, upgrading your skill is like you are shifting. You know, जब अगर आप अपने skills upgrade करते हो, you totally shift from one era to another era. क्योंकि आपने अपनी skill upgrade नहीं किया तो आप दूसरे era में रह रहे हो. You are living in an era that was past. आप उस एरा को देख ही नहीं पाते जो करंटली चल रहा है या आगे चलने वाला है, बिकॉज योर नॉलेज इज नॉट दैट मच, आप उसको समझ ही नहीं सकते. एंड दिस फॉर द सेम, यू डोंट हैव दैट नॉलेज, यू डोंट कंज्यूम आल्सो, और यू कंज्यूम एज एन फन, एंजॉय करने के लिए करते हो. नाउ ओके, वी ऑल नो अपग्रेडिंग आवर स्किल्स कैन चेंज आवर लाइफ, बट हाउ वी कैन, वी ऑल नो दिस इज लाइक एन मैजिक. आप फाइनेंशियली वेल्दी होते हो, आप हर जगह आपकी रिस्पेक्ट होती है नॉलेज से, हर जगह से, बट why we are unable to do? ह्यूमन को कहीं ना कहीं हैबिट हो चुकी है कंफर्ट की, बहुत गंदी. इट्स फॉर एवरीवन. यू नो, वी आर मूविंग टुवर्ड्स द वर्ल्ड जहाँ पे हमारे लिए, इंसानों के लिए चीजें इजी हो, बट एट द एंड वो हमें कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल बना रहे. सारी चीजें हमें टच पे मिलती है, सारी चीजें. आपके पासवर्ड्स भी गूगल सेव कर रहा है. यू जस्ट नीड टू जस्ट क्लिक ऑन द वेबसाइट, इट विल ऑटोमेटिकली ओपन इट. आपका खुद का जो सेंस है ना, वो धीरे धीरे डाउन होता जा रहा है. इट्स नॉट कि आप ये बोल सकते हो सर वो रिपीटेबल चीज है, करने दो ना सिस्टम को, व्हाट्स अ प्रॉब्लम. यू आर लूजिंग योर सेंस गाइस. आप अपने जो ब्रेन सेल्स है उसका यूज ही कम करते जा रहे हो, और जब उसका यूज करना पड़ेगा, ब्रेन सेल्स, दिमाग मना कर देगा, करना ही नहीं है, अवॉइड करने का ट्राई करेगा. क्यों करना है अचानक से? इतने सालों से तो बैठा हुआ है वो, करना ही क्यों है? दैट विल गो इन दैट वे, एंड दैट इज हैपनिंग. हर चीज इजी होते जा रही है. आप नोटिस करोगे पहले जमाने के लोग काफी एक्टिव रहते थे लॉजिकली भी. अब आज के जमाने के लोग मतलब धीरे धीरे डाउन होते जा रहे हैं इन हेल्थ, वेल्थ, एवरीथिंग. एंड सम पीपल आर हैविंग मनी एंड दे आर रिटेनिंग द मनी. नाउ कमिंग टू द थिंग, व्हाट आर द वेज, कमिंग टू दिस टॉपिक, देयर आर 2 ways. आप कंसिस्टेंट हो जाओ, बी प्लान्ड. आप कंसिस्टेंट हो जाओ अपनी लाइफ में.
टाइम की हर कोई कीमत करता है। क्यों? टाइम के लिए किसी के लिए नहीं रुकता। आप सीएम हो, पीएम हो, आप लाइक यू आर अ गुड पर्सन, यू आर अ बैड पर्सन, यू हैव टू रिस्पेक्ट टाइम। तो जो चीज कंसिस्टेंट है उसकी लाइफ में कदर होती है। आप कंसिस्टेंट हो जाओ, राइट डाउन योर थिंग्स, उनको कंसिस्टेंट वे में करो। वन वे। अनदर वे, आपकी लाइफ में आपके साथ कुछ कि आप अपने लोएस्ट पॉइंट पे चले जाओ और फिर आपको बुरा लगा, आप अच्छे व्यक्ति थे बट आपको बुरा लगा और आपने बाहर आने के लिए अपना बेस्ट दिया, एंड देन यू मेड अ चेंज। सर वन थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, मतलब अपन ने लास्ट टाइम जो जीडी था उसके बाद में जो कंक्लूजन सॉर्ट ऑफ रहा था मेरे पास, अपन ने एक चीज डिस्कस करी थी सर, एक व्हील ऑफ फायर की, जो अपने अंदर एक आग रहती है। सर वही चीज थी कि आग आती सबके अंदर है, बट ये है कि उसको अपन कितना चिताते रहते हैं, उससे ही अपनी नेक्स्ट स्टेप्स अपने आप सामने आ जाती है सारी। फायर जो होता है ना, आई फील फायर, वाटर, फायर, कोल्ड, मोटिवेटेड, these are the terminologies, these are the don't last longer, that won't last longer। ये ज्यादा लंबे समय तक नहीं चलती। जैसे मूवी देखने के बाद आपको तगड़ी फीलिंग आती है ड्यूरिंग द मूवी, और मूवी के कुछ टाइम बाद आपको सेंस ऑफ कुछ अलग ही सेंस आता होगा। देखना जैसी मूवी होगी, कोई मोटिवेशन वीडियो देखिए, अलग ही सेंस आता होगा। बट हाउ मेनी ऑफ यू आर एबल टू रिटेन दैट? आप में से कितने % लोग उसको रिटेन कर पाते हैं? मैक्सिमम 2%। सर नॉर्मली भी अपन आग लगाते हैं ठंड में, तो उसमें अपन बार बार लकड़ियां ऐड करते ही रहते हैं ताकि आग बुझे ना। एक छोटा सा एग्जांपल है ये। तो जब बार बार उसको करना है तो फिर हम उसको कंसिस्टेंसी कह देंगे। द 2 points we have discussed, right अथर्व? ये करेक्ट करेक्ट करेक्ट। फिर वो आग नहीं रहेगी, क्योंकि आग आप बार अपने लाइफ में पढ़ने के लिए आग नहीं जलानी पड़ेगी आपको बार बार। यू कैन नॉट फील कि मतलब मुझे करना है करना है करना है। आपकी लाइफ सी, आप सोच के बोल रहे हो, मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। हाउ वंस यू लेट सपोज, आपके अंदर आग कब तक रहती है? जब तक उस चीज को अचीव ना कर लो, फिर वो आग बुझ जाती है, टू बी ट्रू। और अचीव नहीं करने तक भी बहुत बार आग नहीं रहती है। वो आग कब लगती है ज्यादा? जब आपके साथ कुछ हो। आप खुद से आग नहीं लगा सकते। दैट वो लकड़ी से आग लगाने वाला आग, दैट यू कैन पुट, और लकड़ी डालो, आग लगाओ, लग जाएगी। बट हमारी बॉडी अलग वे में वर्क करती है। तो अगर लेट सपोज आपको करियर में एक अच्छी जॉब मिल गई, अभी भी आपको कंसिस्टेंट रहना है, तो आपको दिमाग को रीजन नहीं मिलता। आपकी लाइफ अच्छी चल रही है ना, आपको पैसे मिल रहे हैं ना, वो दिमाग नहीं रहता। तो आपको एक, अब ऐसा वक्त है कि अब आप अपने आप को आग नहीं लगाओगे, अब आप कंसिस्टेंट व्यक्ति आपको बनना है। आपके जो भी टास्क हैं, स्मॉल टास्क एज वेल और बिग टास्क एज वेल, यू नीड टू बी कंसिस्टेंट ऑन दैट। आग इज अ डिफरेंट टर्म। आग यूज होगा जब हम बड़ा करना चाहते हैं, आपको ऐसा लगा ही कि अब मुझे करना ही है, दैट इज अ टर्म वी कैन टेल इट आग। बट इफ यू आर प्लानिंग फॉर लॉन्ग टर्म, आग नहीं रहती लिटरली। आई एम सीइंग दिस विद द एक्सपीरियंस। You need to be consistent. I'll give you another scenario that मैंने आपको 2 एग्जांपल्स बोले, राइट? द वेरी फर्स्ट एग्जांपल वाज कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो या आपको ऐसा कुछ महसूस हो कि अब आपको करना ही है लाइफ में। दैट इज वन पार्ट। दूसरा, आप कंसिस्टेंट हो जाओ। व्हाई इन इंडिया और इन द वर्ल्ड पीपल आर सफरिंग फ्रॉम करियर एंड मेनी अदर थिंग? आई फील आग सिर्फ आग मेरे ख्याल से सबको लगता होगा, बट 10-20% ही जब लोएस्ट पोजीशन पे आते हैं, उनके लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है, तो वो उससे ओवरकम करते हैं, वो लड़ते हैं और बाहर आते हैं, आग लगाते हैं, बाहर आते हैं। 20% लोग ऐसे हैं, मैं अपर लेवल की बात कर रहा हूँ, जो कंसिस्टेंट है स्कूल कॉलेज से ही, दे आर डूइंग बेटर और करियर में भी ठीक ठाक ही कर रहे हैं। ठीक है, वो बंदे कंसिस्टेंट है, वो नहीं भी कहीं ठीक है तो फिगर आउट करके रोज टाइम देके दे आर फिगरिंग इट आउट। उनके साथ कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, मैंने देखा है, जो बच्चे कॉलेज या स्कूल में अच्छे होते हैं, कुछ मैंने नोटिस किया इन द पास्ट, उनका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं होता लोगों के साथ। उनका वो एक्सपोजर नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने पूरा टाइम या मोस्ट ऑफ द टाइम फोकस पढ़ने में दे दिया। इन सम केसेस, नॉट इन अगेन ऑल। तो कुछ नीचे के 20% है जिनको आग लगी, वो बाहर आ गए ऊपर। ऊपर के 20% है जो कंसिस्टेंट थे, वो बाहर आ गए ऊपर। जो मेजर पॉपुलेशन प्रॉब्लम खा रही है वो बीच की पॉपुलेशन है। ना वो नीचे जा रही है, आग लगने के बाद बाहर आ रही है, ना वो ऊपर कंसिस्टेंट हो पा रही है, एंड दैट इज अ प्रॉब्लम। मेरे केस में आई वाज हैविंग दैट फायर। कुछ सीरीज ऑफ ऐसे इवेंट हुए दैट आई फेल्ट कि अब कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा लगता है ना कि नहीं, अब तो करना ही पड़ेगा, एंड दैट वाज नॉट डेवलप्ड। यू कैन नॉट डेवलप इट। वो होता है, फील होता है आपको। यू शुड फील दैट। इन ह्यूमन जो आग लगती है वो ज्यादा टाइम तक जलती है। आप बाहर जो आग जलाते हो, वो आप जब मर्जी जितना आप आग लकड़ी डालो वो जलते जाएगी। Both the scenarios are different. So these are the only 2 ways I feel
आइदर यू बिकम कंसिस्टेंट, आइदर ऐसा कुछ हो आपके साथ लाइफ में कि अब बस अब करना है। अब बात ये है, तो तब मुझे या लाइक एट दैट टाइम आई फेल्ट दैट कुछ करना ही पड़ेगा। आई डिड इट एंड बट अब अगर मैं सोचूं मैं आग अंदर रखूं, दैट विल नॉट बर्न। अंदर से ही फील नहीं है ना वो। हम जो बाहर वस्तुएं देखते हैं दैट इज समथिंग यू कैन कंट्रोल, यू कैन प्रेस ये और ये होगा, बट इनसाइड योर बॉडी दैट डजंट वर्क इन दैट वे ऑन सम फंडामेंटल लॉस। उसको ऐसा लगता है तब वो उस हिसाब से काम करता है। सो इन दैट केस गाइस द ओनली सॉल्यूशन इज, शायद आपकी लाइफ खराब चल रही हो तब तक शायद आप आग जला सको, बट एक लेवल के बाद आपको कंसिस्टेंट होना पड़ता है। मोटिवेशन कुछ काम नहीं करता। यू नीड टू बी कंसिस्टेंट अगर अचीव करना है तो। एंड यू नीड टू बी वन मोर थिंग, रिस्क टेकर। रिस्क लेने पड़ते हैं लाइफ में। इफ यू आर नॉट, आई विल गिव एन अगेन एग्जांपल। सबसे पहली चीज, आई चेंज द डोमेन, राइट? आई वाज फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, सो दैट वाज द बिगेस्ट रिस्क। इस डोमेन में लाइक यू नो ऑलरेडी दिस डोमेन इज लाइक, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना ईजी है, बट क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर वहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, राइट? So now you know a lot of people can do entry, but at that time this was not the scenario, right? Like people from different field can go or not. So the risk, and again I took a risk. After getting the job also I left that. Okay, so taking risk in life is very important. And again guys, like you might feel ki risk calculated hona chahiye. That's correct. But once you take risk 2-3 times ना, आपको पता है at the end of the day क्या होगा। You know, once you do certain things multiple time, you get habituated to it. आपके लिए वो चीज़ें normal हो जाती हैं। So taking risk in life is very important, and being consistent is very important. और आग जलने के लिए I feel to be true guys, आग जलने और motivation के लिए आपके साथ कुछ बुरा होना चाहिए। There is a dialogue, there is a movie of Ranbir Kapoor that just allow me for a minute guys. सर इसमें जो आपने बोला कि बुरा लगना जरूरी है, तो इसकी भी एक कॉमन सेइंग है बहुत पुरानी, इंसान ठोकर खा के ही समझता है। Now your voice is coming. Actually the headphones got disconnected. So I think you guys were saying something. Someone in the mid told something. Who was that? सर आई सेड दैट आई, मतलब आपने बोला था उस पर +1 पॉइंट ही दिया था मैंने। जैसे कि आपने बोला था कि आग जब भी लगती है, मोटिवेशन तभी आता है जब इंसान के साथ कुछ बुरा हो। सर Correct. उसकी भी यही कॉमन सेइंग थी कि हर इंसान ठोकर खा के ही समझता है, लेकिन हर बार ठोकर खाना जरूरी नहीं होती है। Correct. आप हमको आपके एक्सपीरियंस से बता रहे, तो हम इससे भी सीख ही रहे हैं। So guys, there was a movie you all might have seen, Rockstar. तो उसमें there was some person, वो रणबीर कपूर को बोलता है, देख जिंदगी में कुछ बनने के लिए कुछ होना चाहिए, कुछ आग जलनी चाहिए। एंड वहाँ पे उसको सैंपल देता है, वैसे मल्टीपल वेज होते हैं। उसके केस में बोलता है तेरा दिल टूटना चाहिए काइंड ऑफ। तो फॉर हिम ही सेड दैट डायलॉग, ऐसा होना चाहिए, एंड दैट इज एक्चुअली रियल। आपके साथ लाइफ में जब कुछ बुरा होगा तब आप खुद पे फोकस करना शुरू करते हो। जब तक आपकी लाइफ अच्छी चल रही होती है आप इंजॉय करते हो। दैट इज अ प्रॉब्लम विद ह्यूमन, those who are not consistent, we enjoy a lot. तो And एक जब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि अपन वो बुरे मोमेंट आने का वेट क्यों कर रहे हैं। सो इसलिए मैंने बोला कि अब वो तो नेचुरल होता है, ठीक है, अब उसको आना भी होगा तो उसको काफी टाइम लगता है, तो वो आपके हाथ में होता ही नहीं है। दैट्स व्हाई आई टोल्ड दिस मोटिवेशन एंड आग लगना ये आपके हाथ में है ही नहीं, ये इनसाइड प्रोसेस है और ये हमेशा होगा भी नहीं। सो आपको कंसिस्टेंट ही बनना पड़ेगा, दैट इज अ सॉल्यूशन। एंड यू हैव टू बी रिस्क टेकर। किसी भी चीज में घबराना नहीं चाहिए। देयर विल बी ऑलवेज 2 पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ यू। आपके सामने हर वक्त वो 2 सिचुएशन होंगी आपके लिए, मतलब एक कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे आप जो करने जा रहे हो या जो बनने जा रहे हो या इंटरव्यू दे रहे हो या इंटरव्यू नहीं मिल रहा, उसमें कुछ पॉइंट्स होंगे ऐसे कि आप नेगेटिव पॉइंट्स हैं और एक कुछ पॉजिटिव पॉइंट होंगे। नाउ यू हैव टू डिसाइड आपको क्या चुनना है। सर सेम इसी थ्योरी पे मैंने एक रिसेंटली ऑस्कर विनिंग मूवी है वो देखी थी, आपको भी रेकमेंड करूंगा। मूवी का नाम है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस। वो इस पे ही बेस्ड है कि अपने लाइफ पे जितने भी छोटे छोटे डिसीजंस रहते हैं, जो अपने सामने 2 रास्ते रहते हैं, तो उसमें यही बताते हैं कि अल्टरनेट टाइमलाइंस में अगर आप इस डिसीजन को छोड़ के ये लेते हैं जो आप रिस्क नहीं लेने वाले थे, वो आप रिस्क ले लेते हैं, तो उसके क्या आउटकम्स रहते हैं। तो गाइस अगेन मोटिवेशन लेने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं।
but the only motivation you can retain that the only motivation you can take that you can retain like at the end of the day, मतलब जो आपके साथ रहे ऐसा कुछ आप ढूंढो अगर मोटिवेट होना है या ऐसा कुछ. और at the end of the day, if you don't want to be dependent on motivation or any other thing, just create a plan and create a success plan, a day schedule and be consistent on that. अपने दिन का एक शेड्यूल बना लो, उसको फॉलो करो. That is very important. And guys, let me tell you that when my life was not good, okay, when my life was not good, the things was not working, ना personal life ना सही नहीं थी, professional life सही नहीं थी, everywhere the problem, like everywhere I was facing the issues. So उस टाइम पे मैं इंटरनेट बहुत कंज्यूम करता था. So दुनिया भर का ज्ञान लिया बट खुद का ज्ञान नहीं लिया. लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आई जहां पे मैं दुनिया से कट ऑफ हो गया. उसको बोलते हैं रिफाइनिंग फेज ऑफ योर लाइफ. जो भी आपके अंदर खराब इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो निकलते हैं, बेटर इंग्रेडिएंट्स है वो एड ऑन होते हैं और आप अपने आप के बेस्ट वर्जन बोलते हो. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू आर गोइंग टू बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, नॉट समवन एल्स. तो जब मेरी लाइफ में कुछ बदलाव आया, जब लाइफ बहुत बेटर हुई, तब मैं कुछ कंज्यूम नहीं करता था. नो इंटरनेट, नथिंग, नो. तब मैं लोगों से दूर था बट अपने काम पे फोकस था. सो आई फील इन द लास्ट सेशन आल्सो वी हैव डिस्कस कि दिस वर्ल्ड इज गेटिंग टू मच क्राउडेड, स्पेशली विद फोन्स. बिकॉज पहले के टाइम पे क्राउड होने के लिए आपको क्राउड में जाना पड़ता था. अब आज फोन हाथ में ले लो, आप हो गए क्राउडेड. कंटेंट कंज्यूम करते रहो. एंड आई फील नो मैटर गाइस आप कितने लोगों को देख लो, कितना भी कुछ कर लो, एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू बी फोकस्ड. कोई भी मोटिवेशन, कोई भी आग नहीं टिकती. एंड अगर देना ही है खुद को ज़्यादा टाइम दो, उसके सिवा कुछ कहीं और टाइम देना है तो दैट इज अपग्रेडिंग योर स्किल. अपग्रेडिंग योर स्किल में ऐसा नहीं कि मतलब आपके लाइफ टाइम के डिफॉल्ट टाइमलाइन, आपके लाइफ टाइम के डिफॉल्ट शेड्यूल में अपग्रेडिंग स्किल्स होना चाहिए. लाइफ टाइम में रख दो, कुछ ना कुछ सीख रहे हो. अगर आपको अच्छा करियर हो गया, उस टाइम के लिए आप कोई न्यू स्किल सीखो. कैन बी सिंगिंग, डांसिंग और एनीथिंग दैट यू कैन लव अपार्ट फ्रॉम योर लाइक करियर थिंग. क्योंकि जो करियर के लिए आप करते हो जरूरी नहीं कि आपको चीज़ पसंद हो. टू परफॉर्म बेटर इन योर लाइफ एटलीस्ट फाइनेंशियली और इन द करियर पार्ट. अपार्ट फ्रॉम दैट यू शुड चूज समथिंग दैट यू एक्चुअली लव and that will keep you awake inside from inside. वो आपको अंदर से जगा हुआ रखेगी. And so upgrading your skills can be any skills, okay, it can be technical, non-technical. Giving time to yourself it means you can note down your things, you can create some diary, you can do meditation, you can do workout. That is like आप खुद को टाइम दे रहे हो, अपनी हेल्थ, अपने बॉडी को, अपने माइंड को. So these are the two things I think this will help. And आगे मैं कुछ बोलने वाला था and I totally forgot that. That's fine. Okay. And at the end of the day guys, like किसी से भी कोई उम्मीद ज़्यादा मत रखो. ना मुझसे, ना किसी और से, किसी से भी, ना अपने फैमिली में किसी से भी. अगर उम्मीद रखनी ही है तो खुद से रखो. और अगर खुद से उम्मीद रख के खुद की उम्मीदें नहीं पूरी कर पा रहे तो आप दूसरे से उम्मीद रखने के हकदार नहीं हो. क्योंकि अगर आप खुद के माइंड बॉडी के लिए जो चीज़ें करनी चाहिए, जो उम्मीदें रखनी चाहिए, नहीं रख पा रहे, दूसरों के बारे में सोचना, उनसे उम्मीदें रखना भूल जाओ. क्योंकि आप तो अपने लाइक दैट्स, आई एम नॉट अब्यूजिंग, बट अगर आप अपने खुद के लिए नहीं कर पा रहे देन दूसरों के लिए कैसे करोगे. लेट्स सपोज व्हाई यू गाइज आर लिसनिंग मी, क्योंकि मैं खुद के लिए पहले कुछ कर पाया, राइट. मुझे पहले भी ये चीज़ें पसंद थी, हेल्प करना, गाइड करना, बट मैं क्यों नहीं कर पाया था? क्योंकि मैंने खुद के लिए कुछ नहीं किया. लेकिन जब मैंने खुद के लिए कुछ किया तो अब मैं दूसरे के लिए भी कर पा रहा हूँ. यू हैव टू, इन दिस वर्ल्ड यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, एंड द वेरी फर्स्ट पर्सन यू हैव टू प्रूव दैट इज यू, नो वन. पहले आपको खुद को ही प्रूव करना पड़ता है खुद से. एंड हाउ डू यू प्रूव दैट? बिकमिंग अ बेटर पर्सन. अर्लियर आई वाज थिंकिंग कि 5 years बैक आई वाज थिंकिंग कि पैसा और ये सब चीज़ें मतलब नेगेटिव होती है, गलत करके लोग कमाते हैं या ऐसा होता है. बट नाउ आई एम स्लोली थिंकिंग कि ठीक है, हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, बट जब आप करियर में अच्छा करते हो, जब आप एक अच्छी जॉब लेते हो, जब आप अच्छी सैलरी कमाते हो, जब आप अपने हेल्थ को अच्छे से मेंटेन करते हो,
अपनी सारी चीज़ों को मेंटेन करते हैं। इट मीन्स इन चीज़ों में मेहनत लगती है, इन चीज़ों में कंसिस्टेंसी लगती है। तो आपने प्रूफ किया अपने आप को इस लाखों लोगों की भीड़ में, अपने हेल्थ को, अपने बॉडी को, अपने टेक्निकल स्किल्स को उस लेवल पे लेके गए। उस चीज़ के लिए मेहनत लगी है। वो चीज़ गलत कहाँ से हो सकती है? इस दुनिया में अच्छा कमाना, अच्छा हेल्थ रखना, अच्छी स्किल्स रखना बुरा कहाँ से हो सकता है? दैट इज ऑलवेज गुड। यू हैव प्रूव्ड। उसके लिए मेहनत लगती है। आई बिलीव दुनिया में पैसा बहुत है, सब कुछ बहुत है, एंड देयर इज नो लिमिट, बट हमें खुद को उस कैपेबल बनाना पड़ता है दैट वी कैन ऑब्जर्व दोज मनी पैटर्न्स और दोज मनी थिंग्स, एंड आप एक मैग्नेट बनो कि वो चीज़ें आपके पास आए। एंड उस मैग्नेट बनने के लिए यू हैव टू बी द वेरी फर्स्ट थिंग, आई फील, अ गुड पर्सन। बुरे लोग भी कमाते हैं, बट आई फील कि उनको एंड ऑफ द डे नींद नहीं आती होगी अच्छी, या तो वो हैबिट पड़ जाती होगी कि चलो। इफ़ यू हैव सीन वन ऑफ माई रिसेंट वीडियोज, मैंने एक इंस्टीट्यूट के बारे में बताया। उनके 7 इंस्टीट्यूट है, 8 इंस्टीट्यूट है। दे आर टेकिंग स्टूडेंट इन द नेम ऑफ प्लेसमेंट, लेते हैं एंड फिर इंस्टीट्यूट बदनाम हो जाता होगा स्टूडेंट्स के बीच में, राइट? आइदर बाय द रिव्यूज, आइदर इंटरनली, फिर नया खोल देते हैं 1 साल बाद या 6 महीने बाद। सर जितने भी प्लेसमेंट गारंटी करते हैं, जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑल आर स्कैम। हाँ सर, मतलब जिन लोगों ने अटेंड करे 100%। वो भी यही बोल रहे हैं कि प्लेसमेंट गारंटी बोलते तो हैं लेकिन इतने लगते नहीं है। बट द आयरनी इज फिर भी लोगों को नहीं पता चल रहा, राइट? आई हैव सीन टैलेंटेड पीपल गोइंग देयर, बट मे बी अवेयरनेस नहीं होते या बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। But yeah, guys, let's come to our topic. We move to different things. So, the very first topic was AI in SaaS program. So we come to a conclusion that if you upgrade your skills in every 5 years, no one gonna replace you. You will earn as much money you want. जितने पैसे कमाने इस दुनिया में सारे पैसे आपके लिए ही हैं। अगर आप हर 5 साल में अपग्रेड करते हो, जितने पैसे कमाने हैं, एक कंपनी उनके एम्प्लॉयज पे ही चलती है और सबसे ज्यादा डिपेंडेंट रहती है स्किलफुल एम्प्लॉय पे। एंड यू नीड टू बी अ गुड पर्सन एज वेल, वो भी बहुत जरूरी है। बट एक स्किलफुल एम्प्लॉय, ये आयरनी मान लो या कुछ भी मान लो, एक स्किलफुल एम्प्लॉय अच्छा हो कि बुरा, वो कमाएगा ही कमाएगा, क्योंकि उसके पास स्किल्स है, राइट? वो बुरा इंसान हो या अच्छा इंसान हो, कमाएगा। बट वो अलग बात है कि वो ज्यादा कमा के वो पैसे को गलत जगह यूज करेगा। वो उसके साथ, वो उसका पर्सनल मैटर है। गलत जगह यूज करेगा या उसके लाइफ में उससे प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा। एंड अगर आप, इफ यू आर अ गुड पर्सन, इफ यू आर ट्राइंग टू मेंटेन ईच एंड एवरीथिंग, मेंटेन यानी लाइक आपको सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए, एंड इवेंचुअली यू विल बिकम गुड पर्सन। इफ यू थिंक अलोन अबाउट यू, धीरे धीरे आप बुरे व्यक्ति होते जाते हो। यू गो टू नेक्स्ट एक्सटेंट। अच्छे व्यक्ति होने का या कोशिश भी करने का, उन चीज़ों को अपने अंदर लाने का फायदा ये होता है दैट व्हाट आई हैव सीन कि लॉन्ग टर्म में आप बहुत क्लियर रहते हो। नहीं तो लॉन्ग टर्म्स में आपको बहुत प्रॉब्लम आते हैं। दैट बोलते हैं ना कि एक लेवल बाद हाउ अ पर्सन यू आर, दैट मैटर्स अ लॉट। क्योंकि आपके पास कितने भी करोड़ों आदमी हैं, लाइक, बट अपर लेवल्स पे लाइफ में, लेट सपोज एकदम ऊपर जाना हो, तो यू नीड टू बी काइंड ऑफ पर्सन कि आप थोड़े, again there can be different concept. We have seen people in the past, either they are good or bad, but they are at the top level. But again उस पे वो लॉ लागू होता है जो मैंने बताया। even if you are a bad person but you have skills, आप अपने काम को अच्छे से कर रहे हो, जो काम चाहिए, जो काम देना है, तो भी आप बहुत अच्छा कमाते हो। but at the end of the day you create problems for you. Guys, that's all from my end. Any conclusion or anything? We can wind up the sessions. Okay. So and guys, you might have this question. एक क्वेश्चन हम बैक ट्रैक में जाके इसको ले लेते हैं दैट अगर फ्यूचर में न्यू चीजें आ रही है, मतलब तो हम क्यों, मतलब जो फ्यूचर में आने वाला है उस पर क्यों नहीं ध्यान देते? ये क्यों पढ़ते हैं? मतलब जो चल रहा है उसको क्यों पढ़ते हैं? मतलब जो पास्ट है उसको क्यों पढ़ते हैं? जो आने वाला है उसको ही क्यों नहीं वो करते? जो आने वाला है वो अभी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, फिक्स नहीं है, दैट इज गेटिंग इनटू स्ट्रक्चर। वो अभी स्ट्रक्चर में आ रहा है।
और आने वाला जब भी कोई चीज होगा, एनीथिंग न्यू दैट विल गेट इनटू स्ट्रक्चर आफ्टर फ्यू इयर्स, धीरे 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 धीरे। आपको हमेशा अभी का होना चाहिए या पहले का पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको पहले का नहीं आता। लेट्स सपोज कोई क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामर ऑटोमेशन में सीधा काम कर रहा है, ठीक है। लेट्स सपोज कोई नया टूल आया जिसमें ऑटोमेटिक काफी सारी चीजें हो रही है, बट उसको कॉन्सेप्ट नहीं पता है, तो उसको कैसे पता चलेगा ये जो सॉफ्टवेयर ने रेडी किया ये गलत है या सही है? तो आपको हमेशा अपने फंडामेंटल नॉलेज तो कहीं पे भी, एंड यू नेवर फील लाइक कि मेरा ये वेस्ट गया या वो वेस्ट गया इन लाइफ। हर चीज काम की होती है। नाउ द पीपल फ्रॉम आवर एरा जो क्लिनिकल साइंस प्रोग्रामिंग में कोडिंग लिख के सारी चीजें क्रिएट कर रहे हैं, फ्यूचर में कुछ चीजें ऑटोमेट भी हुई तो वी विल बी द पीपल हु कैन कंट्रीब्यूट इन द ऑटोमेशन, क्योंकि हमको पूरा नॉलेज है। इफ एनीथिंग रॉन्ग हैपनिंग विद द सॉफ्टवेयर, अगर कोई इन हाउस टूल कंपनी बनाती है कि उसके अंदर डेटा डालो, कुछ चेंजेस करो और आउटपुट दे देगा, तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक हो रही है तो वी कैन फिगर इट आउट, फिक्स इट आउट, वी कैन डिस्कस, डिबेट, अपग्रेड। बट अगर आपको नहीं पता है so again with you'll end up with half knowledge. So like now we have automatic vehicles, right? तो जिसको पुरानी vehicles आती, not पुरानी, like the vehicles with the gear और उससे भी पुरानी, तो वो लोग वैनिश नहीं हो गए। एंड ये जो न्यू वाली कार है that is like something better, right? Automatic, you don't have to change gears. So always if something new is coming that will be good for you। और आपका ड्राइविंग का नॉलेज खराब नहीं, आप हैंडलिंग तो वैसे ही कर रहे हो, राइट? Concept will be same, few features will be changed or upgraded and that will be good for you always। वो जो upgrade होगा वो आपके लिए अच्छा ही होगा। But let's suppose अब क्योंकि I'm not sure but let's suppose क्योंकि automatic vehicles easy है चलाना, gear change नहीं करने, यानी हाथ भी free, और a lot of people might love people with the gears, but धीरे धीरे let's suppose कंपनी ने ऐसा धीरे धीरे कंपलसरी कर दिया ऑटोमेटिक व्हीकल। इजी है ना उसमें सारी चीजें, उल्टा बेटर है। और अगर आपने सीखी नहीं तब फिर आपको डिफिकल्टी होने लगती है, क्योंकि मार्केट में इतने साल से ऑटोमेटिक व्हीकल चल रही थी जो कि अच्छा भी था, 5, 10, 15, 20 साल हो गए, अभी तक आपने सीखी नहीं, मतलब तो पहली चीज आपको सीख लेनी चाहिए थी एटलीस्ट। और नहीं सीखी तो अब कंपनीज ने बनाना बंद कर दिया, तो अब आपके पास ऑप्शन नहीं है। या आप कहीं और ट्रेवल कर रहे हो, वहाँ पे ऑटोमेटिक व्हीकल है और आपको चीज़ें नहीं पता, बट ऑटोमेटिक में गाइस दिस एग्जांपल विल नॉट सूट हियर, क्योंकि चीज़ें उल्टा आसान हो जाती है। सो पीपल विद द गियर कैन इजीली ड्राइव इट, राइट? सो द चेंजेस एवरीवेयर, यू नीड टू अडेप्ट द चेंजेस एवरीवेयर, और हर जगह रिस्क लेना पड़ता है। एंड जब भी कुछ ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, जब भी लाइफ में कुछ बड़ा करने जाओगे प्रॉब्लम्स आएंगी आएंगी। एंड आई फील द विनर्स आर दोज की जो प्रॉब्लम्स को लेके, उनको प्रॉब्लम्स क्या होती है, एक टेम्पररी सिचुएशन होती है जो आपको टेस्ट करने के लिए आती है। दैट आप कुछ कर रहे होते हो तभी प्रॉब्लम्स आते हैं। आप घर पे लेटे रहो तो शायद कम आएंगी, तो भी आएंगी बट कम आएंगी। आप बाहर कुछ काम पे निकल जाओ, कुछ करने का सोचो, लाइफ में कुछ बनने का कुछ सोचो, कुछ सीखने का सोचो, देन सम स्मॉल स्मॉल प्रॉब्लम्स विल कम। ये नहीं आ रहा, वो नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, बट प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट दे आर ट्राइंग टू मेक यू बेटर, because you are trying something new, you want to create the better version of yourself. Those problems are coming to make you better. Once you solve a problem, and that is obviously you're going to solve that problem, that is coming because you might be dealing for the first time or that something new is there. और जैसे ही आप उसको डिकोड कर लेते हो, जो कि आप कर ही लोगे, and congrats, you have done something new or you have got command on something new. And I feel that how do you deal with your problems, वो बहुत मैटर करता है। और at the end I'll tell, I feel the much more comfort you get in your life, because जब लाइफ में सबसे ज़्यादा मैंने चेंजेस लाए मेरे एंड सबसे ज़्यादा अपग्रेड किए, तो वो टाइम था जब मैं 0 कंफर्ट जोन में था या 10% कंफर्ट जोन में था। I feel the less comfort you have, the more strive you have for doing something. But you need to focus your forces. अगर आप सफ़र कर रहे हो किसी चीज़ से या कंटिन्यूस सफ़र पे हो, you need to feel it that how I can change it, what are the steps I'm taking. 30% people can change their situation once their current situation is not good. But if you want to do something big and if your situations are already good, then it's difficult. So I feel अगर कुछ
अच्छा करना है, बड़ा करना है, चाहे वो स्किल्स अपग्रेड करना ही हो गया, तो यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द कंफर्ट जोन और यू हैव टू कम आउट फ्रॉम द डिफॉल्ट हैबिट्स, जो आपकी हैबिट्स हैं डिफॉल्ट में। या तो उसको रिप्लेस करो, चेंज करो, या तो छोड़ दो। न्यू हैबिट्स अडेप्ट करो जो आपको जो न्यू गोल है उसको अचीव करने में हेल्प करे आपकी। एंड गाइज वन मोर थिंग विच आई एम ऑब्जर्विंग कंटिन्यूसली इवन इन माई लाइफ एंड एवरीवेयर, आप सोचते हो कि मैं ये कर लूँ फिर मेरी लाइफ बदल जाएगी। समटाइम्स लाइक until unless let's suppose the very first part for you guys now is career or a good job, जैसे आप अभी या सबसे पहली चीज ये सीख लूंगा तो लाइफ बदल जाएगी, ठीक है। उसको सीखना शुरू करोगे तो आ नहीं रहा होगा जल्दी, प्रैक्टिस करने में या कुछ डिफिकल्टी आएगी, और आएगा तो फिर ऐसा लगेगा बस अब ये तो आ गया, अब इंटरव्यू क्रैक कर लो फिर लाइफ बदल जाएगी। फिर धीरे धीरे पूरा करोगे, आई एम टेलिंग यू द स्टेजेस, फिर पूरा करोगे, फिर इंटरव्यू ढूंढोगे, फिर इंटरव्यू नहीं मिलेंगे जल्दी, फिर धीरे धीरे इंटरव्यू मिलने लगेंगे, फिर आप सोचोगे अच्छा इंटरव्यू मिल रहा है अब मैं क्रैक कर लूंगा, लाइफ बदल जाएगी। इंटरव्यू मिलेंगे, क्रैक नहीं होगा, फिर परेशान होगे, प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर क्रैक हो जाएगा एंड फिर आपको लगेगा अब लाइफ सेट है। एंड फिर जॉब करोगे, फिर कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी, इनिशियल 6 मंथ्स तो सबसे ज़्यादा, फिर वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी, फिर आपको लगेगा कि अब मेरी लाइफ बदल जाएगी। बट जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हो लाइफ में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ते जाती है, बशर्ते जो आप प्रॉब्लम फेस करते हो एक प्रॉब्लम नहीं रहती, आपसे हर वक्त डिमांड किया जाता है लाइफ में कि आप बेहतर बनो, दैट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ। एंड आपकी प्रॉब्लम्स कभी ख़त्म नहीं होने वाली। एंड आप बोलोगे ये कौन सी बात हुई, बट एक्चुअल में प्रॉब्लम्स होती ही नहीं है, वो आपको इंश्योर करती है वर्ल्ड के, इस पृथ्वी के डिफ़ॉल्ट लॉ है, आप उनको फॉलो करो, एक अच्छे व्यक्ति बनो, एक फिल्टर्ड व्यक्ति बनो। फिल्टर्ड व्यक्ति मीन्स हर बार जब आप प्रॉब्लम फेस करते हो यू बिकम अ बेटर, राइट, यू सॉल्व सम प्रॉब्लम एंड यू डू समथिंग बेटर, आप कुछ अच्छा करते हो। एंड बट यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट प्रॉब्लम्स कंटिन्यूसली आएंगे आपको, यू नीड टू अंडरस्टैंड इन दिस वे कि ये प्रॉब्लम्स क्यों आई है। एंड बिकॉज व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इन माय सिनेरियो कि कोई अगर प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम आई तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने कुछ ना कुछ बेटर किया, इमीडिएट एक्शन लेना पड़ा मुझे सॉल्व करने के लिए। कभी कभार तो एक्शन मतलब ऐसा था कि ले सकते हैं, कभी कभार तो ऐसा नहीं ले सकते, बट उसके लिए ट्राई किया पूरा। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट कभी भी किसी से आर्ग्यूमेंट मत करो, डोंट एक्सप्लेन टू एनीवन, आप अपने आप को एक्सप्लेन मत करो किसी को, नो वन इज इंटरेस्टेड इन यू, दैट इज अ फैक्ट, कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है, और जो इंटरेस्टेड होगा ना वो आपको ढूंढता ढूंढता आएगा, ऑलवेज रिमेंबर। तब आप खुल के उन्हें जो भी बताना है बताना, लेकिन आप किसी के साथ रह रहे हो, घूम रहे हो, कोई भी हो, इट डजंट मैटर, फैमिली और आउटसाइड फैमिली, किसी को भी सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। या यू एंजॉय योर लाइफ, यू डू व्हाट यू वांट टू डू, बट सारी चीजें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम गाइस। नो वन केयर्स व्हाट यू आर थिंकिंग, पीपल लव सक्सेस, पीपल लव रिजल्ट्स, एंड अगर आपने सक्सेस फेलियर से सक्सेस किया तो पीपल लव दैट स्टोरी एज वेल, but no one asks for the failure story, right? People always love the failure to success story. And if you're asking for help, ask to help or ask for help for the person who can really help you, like unke paas knowledge hai at least. So yeah, and that's a fact. I feel that no one ऐसा नहीं कि लोग आपका केयर नहीं करते, बट इन दिस वर्ल्ड थिंग्स आर मूविंग सो फास्ट कि हमारे पास बिल गेट्स का या वॉरेन बफेट का 1 घंटे का वीडियो हो या एलन मस्क का हो, पूरा एक रोड मैप हो, हमें वो नहीं देखना, लेकिन 60 सेकंड की रील्स देखनी है। सो हमारी मेमोरी इतनी शॉर्ट टर्म हो गई है, हमें क्विक सेकंड्स में हमें डोपामिन चाहिए, खुशी चाहिए। तो हमें हमारा हैबिट ऐसा हो गया कि हम किसी को सुने भी ना, फ्रिक्वेंटली कोई अगर ऐसे बोल रहा है, लाइक कोई अपने बारे में खुल के एक्सप्लेन कर रहा है, यू विल नॉट फील टू लिसन मोर, और आप भी एक्सप्लेन करोगे तो किसी को ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, उसको कोई काम की चीज है बात करो तो माइट बी ही और शी इज इंटरेस्टेड। या पीपल वांट्स रिजल्ट, राइट, सबको रिजल्ट चाहिए, एंड दैट इज अ फैक्ट गाइस, दैट इज अ फैक्ट। लेट्स सपोज कोई कोच है जो बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग दे रहा है, उसकी खुद की बॉडी नहीं, अगेन ही कैन बी अ गुड कोच, बट अगर उस कोच का ब्रांड है तो ठीक है, लाइक वो बहुत पहले बॉडी अच्छी थी, अब
नहीं है. You cannot be a like coach for मतलब बॉडी बिल्डिंग की आपकी खुद की हेल्थ नहीं है. You can be, but I feel you need to show the results first, and same way just show the results and first show the results to yourself. अपने लिए अच्छा करो तो आप अपने आप को प्रूव करते हो कि हाँ मैंने मेरे लिए अच्छा किया. Eventually you need to understand this. No one cares what you are thinking, what you are planning. No one cares about it. जो उस सोच की उस प्लानिंग की वैल्यू करते होंगे वो आपको ढूंढते ढूंढते आएंगे. इसलिए कभी भी किसी को बहुत ज़्यादा समझाने, बताने, सिखाने की ज़रूरत नहीं है until unless it is not needed. एवरीथिंग मैटर्स. इसलिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स आती है. आपको लाइफ में कुछ बनना होता है इसलिए इतनी प्रॉब्लम्स आती है, ताकि आप दूसरों को नहीं एटलीस्ट खुद को तो प्रूव कर पाओ इस वर्ल्ड में. खुद को कैसे प्रूव करते हो? आप बेटर सर्विसेज ऑप्ट कर सकते हो, राइट? बेटर चीज़ें खरीद सकते हो, बेटर घर ले सकते हो, गाड़ियाँ ले सकते हो, सब कुछ कर सकते हो एटलीस्ट. एंड और इस जर्नी के दौरान आपको मेंटली थोड़ा प्रिपेयर रहना पड़ेगा. Like whenever you want to do something big in life, you have to be mentally prepared. क्योंकि आपके पास जैसे एक नॉर्मल व्यक्ति के पास प्रॉब्लम 4 तरफ से आ रही है ना, आगे पीछे दाएं बाएं काइंड ऑफ. सो अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हो जो कुछ बड़ा करना चाह रहे हो या करियर में ही स्विच लाना चाह रहे हो, कुछ अच्छी जॉब लेना चाह रहे हो, तो आपके पास 10 तरफ से प्रॉब्लम आएंगी. यू विल फेस द प्रॉब्लम फ्रॉम 10 डिफरेंट साइड्स एंड यू हैव टू बी रेडी फॉर दैट. एंड यू हैव टू टेल योरसेल्फ आई एम रेडी फॉर दिस. आई ऑलरेडी नो मैं कुछ अच्छा करने वाला हूँ, मेरे पास अलग अलग प्रॉब्लम्स आएंगी. So guys, that's all from my end, and we can wind up the session for now. So thank you everyone, and bye bye everyone. Thank you so much, sir. Thank you everyone. Good night. Thank you, night. sir.